We are going to study van der Waals equation of the state. This equation is related for the real gases. We have already studied equation of state, but that equation of state or ideal gas equation was related with the ideal gases. For that equation of state or ideal gas equation, we have assumed that ideal gas molecules are particles, point particles. That means the masses of the molecules of ideal gas is quite small, even negligible, and we have said that their diameters are negligible and they exert no force on each other. Molecules in the gas, in an ideal gas, exerts no force on each other, but they exert some certain pressure on the walls of the container. We have also known that these molecules are at such large distances that they cannot exert any intermolecular force on each other. And after doing these assumptions, we have calculated the ideal gas equation, and the ideal gas equation was stated as PV, product of pressure and volume, is equal to nRT, where n is the number of moles, R is the ideal gas constant, as T is the temperature of the system. And from this above equation we can calculate the value of pressure, and that is equal to nRT over V. Now, moving on towards the real gases, van der Waals assumed that all the previous assumptions for the ideal gases are not true, but few are changed, and the few which are different from the real ideal gas are that molecules of the ideal gas are not point particles. They have considerable sizes and the considerable diameters. So they have if definite diameters, and they exert any force of attraction or repulsion which is known as intermolecular force on each other. They exert these molecules have random motion like ideal gases, but the above listed parameters are different for real gas. So there is a need to modify the ideal gas equation for these three parameters. First, the molecules are not point particles, molecules have definite volume, and the last one, molecule exert intermolecular force on each other. We are going to derive the equation of state for real gases, and for that we are going to modify the equation on the basis of the following two facts. First one is the definite diameter of the molecules of the real gas. पहला पार्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, हमने बात की दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉइंट पार्टिकल्स, इनका कोई ना कोई मैस होता है और कोई ना कोई डायामीटर होता है. तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हमारे पास, इनका डायामीटर क्या इफ़ेक्ट करता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्टेट के ऊपर. और दूसरी बात कि हमारे पास ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं अमंग द मॉलिक्यूल्स, ये क्या इफ़ेक्ट करेंगी हमारे पास हमारी स्टेट इक्वेशन के ऊपर. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए. द करेक्शन इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. यहाँ पे AMOG आना था H की जगह. नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द कॉन्ट्रीब्यूशंस के हमारे पास जो डेफिनेट डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो रियल गैस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करता है. तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हमें पता है कि हमारी जो रियल गैस है, रियल गैस का जो डायमीटर है मॉलिक्यूल्स हैं उसका एक डेफिनेट फिक्स्ड वॉल्यूम डायमीटर होता है. और ये जो फिक्स्ड डायमीटर है हर मॉलिक्यूल के लिए, हम कहते हैं ईच मॉलिक्यूल इज़ अ हार्ड स्फीयर. हमारा हर मॉलिक्यूल उसका डायमीटर फिक्स्ड होगा, हर मॉलिक्यूल के लिए फिक्स डायमीटर होगा. अब बात ये करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर गैस के अंदर एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं होते, लेकिन मोर और लेस सेम होते हैं रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स. तो मोर और लेस जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास रियल गैस के अंदर, उन तमाम का कोई ना कोई डेफिनेट डायमीटर होगा. और उनकी अगर हम 3 डायमेंशनल शेप देखेंगे तो वो स्फेयर की तरह से, हार्ड स्फेयर से मुराद अगर आप लोग एक अदद बॉल ले लेते हैं अपने पास, टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल आप लोगों के पास है, दैट बॉल इज़ अ हार्ड स्फीयर.
अब क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर कि हमारे पास दो अदद मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल ए और बी हैं हमारे पास। अब ये जो मॉलिक्यूल ए और बी हैं, इन मॉलिक्यूल्स ए और बी के लिए बात करता है, वो कहता है कि ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये दोनों हमारे पास हार्ड स्फीयर्स हैं और ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं दोनों का डायमीटर चूँकि मोर और लेस ये सेम थे एक सिंगल गैस के अंदर, तो दोनों का डायमीटर सेम होगा और दैट डायमीटर इज़ डी। अब वो कहता है, हमारी जो फर्स्ट डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर वो कहता है कि हम क्या करते हैं, हम एक हेमीस्फीयर ड्रॉ करते हैं। अब हेमीस्फीयर क्या है, बेसिकली इट्स अ सेमी सर्कल, सेमीस्फीयर जैसे सेमी सर्कल होता है, सेमी सर्कल इज़ इन 2 डायमेंशंस एंड सेमीस्फीयर इज़ इन 3 डायमेंशंस। तो हमारे पास एक अदद सेमीस्फीयर है और सेमीस्फीयर हमने किस तरह से करना बनाना है कि हमने इस स्फीयर के सेंटर पे अपने मॉलिक्यूल ए को रखना है। अब मॉलिक्यूल ए को स्फीयर के सेंटर पे रखा और हमने उसके गिर्द एक अदद बना दिया है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर की के लिए क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए कि ये जो आपका हेमीस्फीयर है इसका जो रेडियस है दैट मस्ट बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका जो रेडियस है वो हमारे मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अब रेडियस मॉलिक्यूल के डायमीटर के बराबर किस तरह से हो जाता है, वो ये हमारे पास सेकंड डायग्राम में समझाई हुई है बात। लेट्स से कि हमारे पास इस साइड वाला मॉलिक्यूल इट्स मॉलिक्यूल ए एंड इट इज़ योर मॉलिक्यूल बी। अब मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, अच्छा ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये आपकी फर्स्ट डायग्राम, ये जो पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि रेडियस इज़ इक्वल टू द डायमीटर, ये इसको कम्प्लीटली डिफ़ाइन नहीं करती, लेकिन हमारे नोट्स के अंदर ये डायग्राम बनाई गई है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस डायग्राम को भी याद रखें और जहन में रखें, लेकिन जो इस लाइन की एक्सप्लेनेशन है आपके पास वो आपकी ये सेकेंड डायग्राम कर रही है। और वो सेकेंड डायग्राम किस तरह से कर रही है, वो कहती है कि आपने क्या लिया, एक स्फीयर ए लिया। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वाला पोर्शन अभी मॉलिक्यूल बी नहीं है, हम मॉलिक्यूल बी को एज्यूम नहीं कर रहे, हमने मॉलिक्यूल ए लिया और मॉलिक्यूल ए को हमने क्या किया, इसके गिर्द एक कंप्लीट स्फीयर बनाया जैसे कि यहाँ हमें नज़र आ रहा है। मॉलिक्यूल बी हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है इस वक्त, सिर्फ़ और सिर्फ मॉलिक्यूल ए मौजूद है, मॉलिक्यूल बी जो है वो हमारे पास नहीं है। हमने क्या किया, मॉलिक्यूल ए के गिर्द ये ब्लू डॉटेड लाइंस के साथ एक अदद सर्कल स्फीयर बना दिया इसके गिर्द, 3 डायमेंशनल स्फीयर। मॉलिक्यूल्स आर 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन क्योंकि हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते इसलिए हमने एक 2 डायमेंशनल डायग्राम ही ली है। और इसमें हम लोगों के पास क्या नज़र आ रहा है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके गिर्द मॉलिक्यूल ए को रखा हमने सेंटर पर, और सेंटर पर रखने के बाद हमने क्या किया, हमने इसके गिर्द बना दिया एक अदद सेमी सर्कल, एक अदद स्फीयर। और ये जो स्फीयर है इसके लिए ख़ास बात कहता है कि जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है ये बराबर होना चाहिए डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल के। तो अब बात करते हैं यहाँ पर डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल के बराबर ये किस तरह से है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल के डिस्टेंस, टोटल मॉलिक्यूल का डायमीटर लेते हैं ए मॉलिक्यूल का, ठीक है जी, तो हमने ये बात की ए और बी मॉलिक्यूल्स दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का सेम डायमीटर होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा। तो जो ए का रेडियस होगा उतना ही आपके पास बी का रेडियस होगा, ऐसे ही है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो बी मॉलिक्यूल था हम कहते हैं इस लेट्स से इसका रेडियस भी आर के बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है, और जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था उसका रेडियस भी हमारे पास यानी ए का रेडियस भी हमारे पास स्मॉल आर के बराबर था। तो यहाँ से इस 2 रेडियसेस प्लस हो रहे हैं, तो 2 रेडियसेस का एडिशन जो है वो हमारे पास 1 डायमीटर के बराबर होता है। और यहाँ पे डायग्राम में हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो स्फीयर हमने ब्लू डॉटेड स्फीयर बनाया है वो डॉटेड स्फीयर जो है वो बराबर है किसके, 2 मॉलिक्यूल्स के रेडियस के, और 2 मॉलिक्यूल्स का रेडियस जो है अगर वो एडअप करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि द मॉलिक्यूल्स, the radius of the sphere is equal to the diameter of the molecules।
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब वो कहता है कि चूंकि अब यहाँ पे सेकेंड वाली डायग्राम इट्स क्वाइट क्लियर कि हमारे पास पॉइंट जो ब्लैक वाला पॉइंट है फॉर मॉलिक्यूल ए, हमारा ये जो ब्लैक पॉइंट है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस, और ये जो रेड वाला सर्कल है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हम मॉलिक्यूल की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एटम। तो यहाँ पे ये इस तरह की डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम सिंपल ये बात करते हैं कि हमारे पास, हमने अभी स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स का डेफिनेट डायामीटर होता है, और मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हार्ड स्फेयर है तो बॉल जो है प्लास्टिक की, अगर आप बॉल लेते हैं तो प्लास्टिक की बॉल को तो आप प्रेस नहीं कर सकते, और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये बेसिकली प्लास्टिक बॉल्स एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, या कोई सिरेमिक बॉल एज्यूम कर सकते हैं जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते। तो मॉलिक्यूल ए जो है उसके बिल्कुल साथ मॉलिक्यूल बी पड़ा हुआ है, और मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल बी को जो है वो क्या नहीं कर सकता, प्रेस नहीं कर सकता। और अगर प्रेस नहीं कर सकता तो ये बी का जो सेंटर है, मॉलिक्यूल बी का सेंटर, वो मॉलिक्यूल ए के सेंटर के एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही पास आ सकता है, उससे ज़्यादा पास नहीं आ सकता। तो मॉलिक्यूल बी का सेंटर जो है वो हमारे ये जो फर्स्ट स्फेयर, ये हेमिस्फेयर हमने बनाया था, इस हेमिस्फेयर के अंदर नहीं आ सकता इसका सेंटर। तो यहाँ से हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल बी का सेंटर जो है वो मॉलिक्यूल ए के सर्टेन डिस्टेंस पर नहीं आ सकता, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस मेंटेन रहता है, और फ्री स्पेस जो है वो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल रहता है मॉलिक्यूल के दरमियान। देन मूविंग ऑन टूवर्ड्स द डेरिवेशन, कि हम लोग किस तरह से इसका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ऑन द स्टेट इक्वेशन। उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक अदद रियल गैस है, और उस रियल गैस के लिए हम पहले जो वॉल्यूम कैलकुलेशंस करते आए हैं वो आइडियल गैस के लिए करते थे, अब हम रियल गैस के लिए वॉल्यूम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अब मूविंग बैक टूवर्ड्स आवर फर्स्ट डायग्राम, जिसमें हमने एक अदद हेमिस्फीयर कंसिडर किया था, और हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो हमें एक फ्री स्पेस, डेफिनेटली उसके कहते हमने बात की कि कोई ना कोई फ्री स्पेस मौजूद होगी। तो ये जो फ्री स्पेस है ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर के, जितना हमारे पास हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है उसके। तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर के लिए वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो बराबर होता है 4/3 पाई डी क्यूब के। डी इज़ द डायमीटर ओवर हेयर, लेकिन चूँकि हम लोग हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ हाफ ऑफ द स्फेयर, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर विल बी 1/2 4/3 पाई डी क्यूब। और अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस फ्री वॉल्यूम के अंदर, एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं था बल्कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास रियल गैस है, तो रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मौजूद होते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं इस हेमिस्फेयर के अंदर, तो हमारे पास जो अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। चेंज किस तरह से हो जाएगा, अब 1 की जगह हमारे पास पहले ऊपर वाली इक्वेशन में बेसिकली हमारे पास क्या लिखा हुआ था, मल्टीप्लाइड बाय 1, लेकिन अब वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए हैं और वो हो गए हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 1 की जगह हमने एवोगैड्रो नंबर पुट कर दिया। और बेसिकली हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो बराबर होता है 1 मोल के, so we can write it as the number 1 mole of the real gas gives a free volume of this number. Now let's say कि B जो है हमारे पास, B is equal to this फ्रैक्शन, ये जो सारे का सारा फ्रैक्शन है ये हमारे पास B के बराबर है। अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि B बेसिकली क्या है, बी हमारे पास वो फ्री वॉल्यूम है जो कि हमारा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल हमें प्रोवाइड कर रहा था, सिंगल मोल हमें प्रोवाइड कर रहा था, सॉरी हम मोल की बात कर रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो बी वो मॉलिक्यूल वो फ्री वॉल्यूम है जो एक सिंगल मोल के गैस के एटम्स के दरमियान मौजूद होता है। नाउ लेट्स से कि हमारे पास n मोल्स हैं, लेट्स से कि हमारे पास n मोल्स हैं, तो फ्री वॉल्यूम की वैल्यू जो बराबर हो जाएगी एन बी के,
अब हम कहते हैं कि जो आइडियल गैस है हमारे पास, उसके लिए हमने जब वॉल्यूम कैलकुलेट किया था तो हमने कहा था दैट वॉल्यूम वाज इक्वल टू वी। लेकिन अब उस वी वॉल्यूम के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स वर फ्री टू मूव, लेकिन यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, रियल गैस के केस में एक सर्टेन डिस्टेंस है जिससे ज़्यादा वो क्लोज नहीं आ सकते, और वो डिस्टेंस कौन सा है, वो फ्री वॉल्यूम का डिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर हम रियल गैस के लिए वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अगर हम रियल गैस के लिए वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस माइनस फ्री वॉल्यूम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। दैन तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास जो रियल गैस के लिए आएगा वो V माइनस एन बी के बराबर हो जाएगा। और हमने आइडियल गैस इक्वेशन या फिर जो स्टेट इक्वेशन थी वो लिखी थी, और वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब V की जगह हम उसकी वैल्यू रियल गैस के लिए पुट कर लेते हैं, और वो हमारे पास क्या आ रही है, V माइनस एन बी। तो हमारी रियल गैस इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर हमारे पास क्या आ जाएगी, पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ से हम प्रेशर के लिए अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इट शोज़ के रियल गैसेस के अंदर जो हमारे पास प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द आइडियल गैसेस। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू जो है वो छोटी है, और अगर न्यूमिनेटर में वैल्यू छोटी हो तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास, हमारे फ्रैक्शन का आंसर बड़ा होता है। Now, numerically we have observed that the pressure of the real gas is higher than the pressure exerted by the molecules of the ideal gas on each other. Now, why this pressure is higher? That because the molecules because the molecules in the real gas makes more collisions with the with the walls when the volume is reduced for the real gas. Now moving on towards the second contribution, और second contribution हमारे पास है contribution of the intermolecular force। हमारे पास intermolecular force क्या contribution करती है on the state ideal gas equation। Molecules of the real gas have intermolecular forces, ये बात हमने पहले से जानते हैं। अब वो कहता है कि molecules in the real gas, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं और हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, हम बात कर रहे थे कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं रियल गैस के अंदर, अगर रियल गैस बेसिकली हम लोगों ने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के इंटीरियर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कैंसल आउट करेंगे। इसी तरह जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टकराएंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अब वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो ये एक फोर्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ द